हे folks, वेलकम टू द 9th लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स इज अ टॉपिक दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट ये बहुत रेयरली टेस्टेड है इन आईपी मैट, बट स्टिल वी डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, तो लेट्स गेट इनटू इट रियल क्विक। माय नेम इज अमित सुराना, आई एम योर क्वांट्स एंड योर DILR expert. We are going to deal with what installments are, how to calculate it using SI and how to calculate it using CI. ठीक है? Also, all of these videos are available in this playlist, so you can use this in the notes and make use of the playlist. चलिए, so what exactly are installments? Let's talk about some terminologies. Let's say that you're buying some product. ठीक है, आपको एक फोन खरीद रहे हैं. The phone is say 20,000 rupees का. ठीक है. Now you can either buy this phone by paying full 20,000 at once. Alternatively, you have a choice of going for an installment plan. तो installment plan में क्या होता है? You can't put all the 20,000 in installments. I mean, not every time. Sometimes there could be some offers or something. But usually what people do is they make some kind of a down payment because they don't want to pay hefty interest. तो क्या करते हैं? Down payment करते हैं. Right? So down payment का मतलब क्या है? It's one part of this that you don't want to put it on interest. Down payment आप कर रहे हो, let's say 10,000 रुपए का. ठीक है, सो दिस 10,000 रुपीज यू आर पुटिंग इट डाउन एज अ डाउन पेमेंट, मतलब आप पहले अपफ्रंट दे रहे हो 10,000. बाकी के जो 10,000 हैं, दिस बिकम्स योर प्रिंसिपल. ये आपका प्रिंसिपल है. अब जब आप EMI पे डालते हो तब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, इस पे नहीं. राइट? तो वंस यू फिगर आउट द प्रिंसिपल, देन यू नीड टू लुक एट व्हाट योर प्लान इज. आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो क्या है? इज इट simple interest based or is it compound interest based, and उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है और हर एवरी ईयर और एवरी मंथ जो भी आपका प्लान है वो आप कितना पे करते हो, दैट्स व्हाट इज कैलकुलेटेड हियर. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वी विल हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एंड टाइम भी होगा. यहां पर हियर देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड E. That's nothing but your installment value. Now, installment value is what you should technically pay to the store owner, और जो भी बैंक है या जो भी है जहां से भी आप लोन ले रहे हो, ये इंस्टॉलमेंट वैल्यू ही आपको पे करना होता है, the actual value that you have to pay. However, this is not how installments work, right? हमें क्या लगता है कि चलो जो भी हमारा अमाउंट है, मेरे को अगर 2 साल में देना है तो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके इक्वल दे देते हैं. But that's not how it works, right? Let's take up a simple example. अगर simple interest से है, what you do? You find out the amount. There are formulas, folks. There are formulas available in the book. There are formula available over the internet. But I never, encourage people to go for formula. I don't promote them, but I never encourage them also to go for formula because one, remembering the formula itself is going to be a task. After that, applying it in that situation is going to be a bigger task. तो फॉर्मूला से अच्छा आप लॉजिक समझ लो. थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा सॉल्व करने का प्रोसेस, बट इट विल फेच यू राइट आंसर एवरी टाइम. ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द अमाउंट. यस, पहले फाइंड द अमाउंट, वेदर इट इज फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी है आपको अमाउंट ढूंढना आता है. यू फाइंड आउट द अमाउंट. नंबर 2, व्हाट यू डू इज यू फाइंड आउट बाय व्हाट मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इज एवरी ईयर्स इंस्टॉलमेंट गोइंग बाय. राइट? चलो आ जाओ देखते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन हियर. अ कार कॉस्ट 20 lakhs which is paid using an installment plan. 5 lakhs is paid as down payment. तो चलो पहले 20 लाख रुपए का था, 20 lakhs का था, उसमें से 5 lakhs तो डाउन पेमेंट में चला गया, which means we no longer have to worry about this down payment amount, है ना? वो तो उनके पास चला गया. बाकी क्या बचा? 15 lakhs. यस, अब ये जो 15 lakhs है ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया. Yes. Next, what are they saying? And remaining is paid as equal annual installments in 5 years. 5 साल में हमें ये पे करना है. We are paying this in 5 years. Okay. If 12% per annum simple interest is applied, then how much is the installment value? तो टाइम हमारे पास है. Yes, we know the rate of interest is 12%. Let's quickly do the first thing, that is calculating the amount. How much do we owe? Amount is nothing but the amount, the money that we owe the बैंक या जो भी whatever, राइट? जो भी हमें लोन दे रहा है उसे हम कितना ओ करते हैं. सो द प्रिंसिपल इज, क्योंकि दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, वी नो हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट. कैसे? अमाउंट क्या होगा? जो भी आपका प्रिंसिपल है प्लस
आर इंटू पी टी आर बाई 100 है ना, पी टी आर पी एन आर जो भी आप लगा रहे हैं, पी एन आर बाई 100 लगा के हो जाएगा. यस, वी डोंट डू दिस एनी मोर, क्योंकि नाउ वी बिकम कंफर्टेबल विद दिस. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट ढूंढना हमें आता है. 12% है, 12% फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 years, दैट्स 60%. यस, so 60% increase is 1.6 times on what is the principal क्या अपना 15 लाख का. So this is how much, 24 lakh. So we basically now owe the company 24 lakh rupees. Yes, जैसे भी हम पे कर रहे हैं, at the end of the 5 years the company would have gotten 24 lakhs from us. Yes, but इसका जो प्रोसेस है वो अलग है. How does it work? इंस्टॉलमेंट इन द फर्स्ट ईयर, इंस्टॉलमेंट जो 5 years में पे करना है हमें, है ना. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. यस, व्हाट वी थिंक इज वी आर पेइंग द सेम अमाउंट एवरी ईयर, बट दैट्स नॉट द थिंग. अगर मैं पूरा 5 साल रख लूं मेरे पास, अगर मैं ये 24 lakhs पूरा 5 साल में रख लूं और फिर मैं अगर दूं तो ठीक है भाई, तब तो हर एवरी टाइम आई एम पेइंग द सेम अमाउंट जैसा सीन हो जाता है. बट व्हाट आर वी डूइंग, 5 साल के पैसे वो हमसे ले रहा है, इंटरेस्ट वो 5 साल का पूरा मिला के ले रहा है, बट हम तो पैसा फर्स्ट ईयर में दे रहे, थोड़ा पैसा सेकेंड ईयर में दे रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. So what we think is this is 24 lakhs divided into 5 years. 24 lakhs divided into 5 years. Yes, 24 lakhs in 5 years. That is basically 4.8 lakhs हम दे रहे हैं per year. यहीं पे गलत हो गए. This is what is wrong. We are not giving 4.8 lakhs यहाँ पे 4.8, 4.8, 4.8, 4.8. No. I'll tell you how we actually pay. In the 5th year, we are paying E. ठीक है. In the 4th year में क्या होता है, जो हमारा इंस्टॉलमेंट वैल्यू है वो 1 साल के लिए उनके पास पड़ा है. मेरे को तो 5 साल में पूरे देने हैं ना 24 lakhs, बट मैं तो 4 साल में तो कुछ दे रहा हूं अमाउंट. मतलब 1 साल तक, 4th से लेके 5th तक, 1 साल तक उनके पास मेरा पैसा पड़ा है. गेटिंग दिस? तो 1 साल का उनने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया था मेरे पे, 12% का. तो 12% में उनको एक्स्ट्रा ही दे रहा हूं. दिस बिकम्स 1.12E. आ रहा है समझ में? 12% मिला के दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा दे रहा हूं. अब यहां पर क्या हो रहा है, 2 साल के 12% में दे रहा हूं, 12 + 12. सो आई एम गिविंग देम 24% ऑफ E. यस. नेक्स्ट 3 साल का मिला के 1, 2, 3, दैट मीन्स आई एम गिविंग देम 36% ऑफ E ज्यादा. एंड फर्स्ट ईयर में मैं क्या कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 years, 4 into 12 is 48% ऑफ E में एक्स्ट्रा दे रहा हूं. सो ओवरऑल थ्रू आउट द 5 years मैंने सिर्फ E अमाउंट इक्वली नहीं दिया है. हाउ हैव आई पेड? आई पेड देम 1.48 times, then 1.36 times, then 1.24 times, then 1.12 times, and then 1 time. So basically मैंने 6.2 times E पे किया है उनको. Getting this? 6.2 टाइम्स E पे किया है. तो ये जो 6.2 E है, ये कैसे स्प्लिट होगा, इन 24 lakhs में स्प्लिट होगा. गेटिंग दिस? 24 lakhs में स्प्लिट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया. सो क्या कर रहे हैं हम, एक बार एक्स्ट्रा 12%, क्योंकि ये 2 साल तक है तो 24%, ये 3 साल है तो 36%, ये 4 साल तक हम रख रहे हैं इसलिए 48% एक्स्ट्रा कर रहे हैं. क्लियर? बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल पेइंग देम ओनली 24 lakhs ओनली. हम उन्हें 24 lakhs ही पे कर रहे हैं, बट पे करने का तरीका अलग है. So this divided by 6.2 is how much? 24 lakhs divided by 6.2 is how much? 3,87,000. E becomes 3,86,096.77. Yes, they wanted to approximate it to the nearest integer. तो इसका nearest integer क्या होगा? Nearest integer is going to be what? 38709. 6.5 से ज्यादा है, so 097. This is my answer. Clear? What we think is we are paying 4.8 lakhs. This is wrong. हम 4.8 lakhs के तरह नहीं पे कर रहे, हम उन्हें 3,87,097 के जैसे ही पे कर रहे हैं, बट
बिकॉज द नेक्स्ट ईयर विल बी एडिंग सम इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर विल बी एडिंग सम इंटरेस्ट, तो ऐसा है, ठीक है, डन। चलो परफेक्ट। नाउ द सेम थिंग विद सीआई, सेम लॉजिक है सीआई को लेकर भी, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर भी सेम है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द अमाउंट, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, जो अमाउंट आप ढूंढोगे वो सीआई के टर्म्स में होगा, एंड दूसरा जो आप ई का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ढूंढोगे, ये जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ई का ढूंढोगे ये भी सीआई के टर्म्स में होगा। यस, सेम एग्जांपल है, सेम अमाउंट, सेम एग्जांपल, ओनली थिंग इज कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, बस इतना ही, राइट। तो पहले क्या करेंगे, हम अमाउंट ढूंढेंगे, प्रिंसिपल क्या अपना 15 लाख ओनली, ओके, 15 लाख ही है हमारा अमाउंट, नॉट 20 लाख, डाउन पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख का। तो 15 लाख पे हमें अमाउंट ढूंढना है, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितना परसेंट, 12%, कितने साल, 5 साल, इनटू 15 लाख, गेटिंग दिस। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ, प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखना, ठीक है। चलो, with this what do we have, 1.12 raised to the power 5, so once, twice, thrice, 4 times, and here is the 5th time. So how much is this, 1.762, yes, 1.762 times 15 lakhs. This comes up to what, हमारा अमाउंट क्या होता है, into 15 lakhs I'm doing, yeah, that comes up to 26 lakhs 43,000, 26 lakhs 43,512.52 है, 0.5 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 513 हो जाएगा, ठीक है। I'm just approximating it to nearest integer, 530, clear? So this is the final amount that we owe them. Remember कैसे simple interest में सिर्फ 24 lakhs था, यहाँ पे 26 lakhs 43,513 है, ठीक है। So this is the amount that we owe them. Now what do we do? Installment value का calculation. Yes, installment value का calculation कैसे, 5 years है, so 1, 2, 3, 4 and 5 years। लास्ट ईयर में आप ई ही दे रहे हो, फर्स्ट ईयर में आप 1.12 टाइम्स ई दे रहे हो, 12% एक्स्ट्रा, यस। यहां पे थर्ड ईयर में आप 24% एक्स्ट्रा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यस। सो यहां पे आप एक्चुअल में कितना दे रहे हो, 1.12 का स्क्वायर इतना एक्स्ट्रा दे रहे हो, यहां पे 1.12 का क्यूब जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, यहां पे 1.12 पावर 4 जितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, समझ में आ गया, यस। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में दो डिफरेंसेस, इंस्टॉलमेंट, 1 अमाउंट कैलकुलेशन, नंबर 2 इंस्टॉलमेंट वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है। अब बस हमें इन्हें ऐड करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज द मेमोरी फंक्शन हियर इंस्टेड, यहां पे मैं मेमोरी फंक्शन यूज करूंगा, यस। तो आई हैव 1.12, मैं एक बार इसे मेमोरी में सेव कर रहा हूं, यस, छोड़ दो इसे, मल्टीप्लाई दिस विथ 1.12, आई गेट दिस, मैं इसको मेमोरी में सेव कर रहा हूं वापस, आई एम रिप्लेसिंग दैट, आई एम सेविंग दिस, बट आई हैव टू ऐड इट टू 1.12, तो मैं मेमोरी पे प्लस कर रहा हूं, क्लियर दिस ऑफ। नेक्स्ट यू हैव 1.12 का क्यूब है ना, इनटू 1.12, तो ये अमाउंट मैं वापस मेमोरी में ऐड कर रहा हूं, इनटू वन मोर टाइम 1.12, इसको भी मैं वापस मेमोरी में ऐड कर दूंगा, आई विल क्लियर दिस ऑफ, आई विल रिकॉल द मेमोरी, प्लस 1, ये 1e। देखो कैलकुलेशन कैन बी मेड इजी, यू डोंट हैव टू सिट एंड टाइप द होल थिंग, यस। So this comes up to what, 6.3528, yes, this is 6.3528, I'm just writing it down, but मैं वही यूज करने वाला, I'm going to use that, this amount is equal to this, है ना। So 6.3528e is basically what, ये वाला अमाउंट जो अपना 26 lakhs 43,513 आया था, यस। सो व्हाट डू आई डू, क्योंकि मेरे पास रेसिप्रोकल का ऑप्शन है, मैं पहले इसको इससे डिवाइड करके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, सर 26 43 513 ये कर दिया मैंने, अब मैंने इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, गेटिंग दिस 26 43, नाउ आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, व्हिच इज हाउ मच,
416 114.6 यस 4 lakhs. So E की वैल्यू क्या आती है 4,16,114.67 है तो 150. दिस बिकम्स माई इंस्टॉलमेंट वैल्यू. तो हमारा आंसर कितना है वी आर पेइंग 416,115 फॉर देम 4,16,115 इंस्टेड ऑफ पेइंग compound interest में you have to be careful again. A lot of people take this 2643,513 divided by 5 क्योंकि 5 साल में देना है वो गलत है ट्रैप होगा. Okay, this is our answer. So with this you can answer any kind of question that is thrown at you with respect to installments, be it simple interest के basis पे installments या compound interest के basis पे installments. Here is the link again for the playlist. I hope you guys understood installments and you will be able to answer the questions on the basis of this. ठीक है? Don't forget to check out the playlist, folks. We are done with percentage based questions. हमने percentages खत्म कर दिए, profit and loss खत्म कर दिया, simple interest, compound interest खत्म कर दिया, and we've also done with the installment part. I hope this video was helpful for you all. All the very best. Cheers.